Hello students, I am Praveen Tripathi, once again welcoming you in your computer session. And we are doing our chapter 2, which is all about the computer languages. And this will be the part 2, and hence we have completed our part 1 of this chapter. So far we have discussed about the computer languages. So just take a quick recap what we have studied in the last meeting, or we can say in the last session. So we have understood that what is program. So tell me, what is program? A program is a set of instruction that we give to the computer and it performs some specific task. Then we have understood that what are the programming languages. So the programming languages are the computer languages in which we write the program, or we can say the source code, and then it executes accordingly. And then we have understood that what are the low level languages and high level languages. In the low level languages, we have understood that the machine language and the assembly language. In machine language, we have understood that there are two types of digits we use, which is the 0 and 1. 0 means off, 1 means on, and these two digits are commonly known as the binary digits. Okay, so we can say that the machine language is equals to the binary languages. And then we have understood that assembly language. In assembly language, we have just enhanced our machine language. In the assembly language, we were using the English alphabets, English spelling, and English word to executing our specifically task. And then high level languages. High level languages is just like the C, C++, Java, and etc., in which we are using the English alphabets, English spelling, English sentences, as well as it is converting into the machinery language. So that's why they are called the high level languages. So, and the difference between the low level languages and the high level languages. So students, I am hoping that you have understood the previous segment which we have covered. So now look what is today's agenda, what we are going to understand in today's class. So we are going to understand that what is the modern high level language. We have understood the high level language, but there is a one more language which is the modern high level language, which is the currently being used in this era. Okay, and then we will look to the language translators. What are the language translators? Just like the compiler, interpreter, and etc. Okay, and then we will complete this chapter by understanding the difference between the compiler and interpreter. So without any further delay, let's start our session. Okay, so there is a first topic, which is the modern high level language. We have understood the high level language. What was they were the C++, Java, okay, C, etc. So in these kind of languages, we were giving the commands, we were giving the instruction to the computer system by our English language. Okay, and this English language is further converted into the machine code. अब मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज भी हाई लेवल लैंग्वेज का एक एनहांसमेंट है, एक एडवांस वर्जन है. जैसे हम कह सकते हैं ना कि हर एक चीज का एडवांस्ड वर्जन होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज ही है, बट इसमें कुछ और स्पेशलिटीज, कुछ और स्पेसिफिकेशंस ऐड हो चुकी है. So let's understand, these languages are closer to human languages that the old high level languages. When we are talking about the old high level languages, this means that we are talking about the C++, Java, and Fortran, Pascal, etc. Okay, so they are easier to learn and write. Which modern high level language? So they are easier to learn and write. These programming languages are designed to reduce the overall time, effort, and cost of software development. This is a very important factor of this language. What are they? Just reduce the overall time. ठीक है, जो भी टाइम लगता है हमारा एग्जीक्यूशन का, वो थोड़ा सा कम कर देते हैं. जैसा कि आपको मैं बता दूं कि एक कोड अगर आप C++ या C में लिखेंगे और एक कोड अगर आप पाइथन या रूबी लैंग्वेजेस में लिखेंगे, वो आपका कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा टाइम सेव कर देगा. ठीक है, अगर मैं एफर्ट्स की बात करूं तो बिल्कुल जो C++ में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बट अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन लैंग्वेज में आपको बहुत कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. कोस्ट का मीनिंग क्या होता है कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है. तो इन सब में मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज कहीं ज्यादा है, कहीं बेहतर है. ठीक है, सो दीज आर आल्सो कॉल्ड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस, व्हिच इज known as the 4GL. So whenever I will talk about what are the fourth generation language, your answer will be
modern high level language. Okay, so I hope you are understanding my point. So examples of fourth generation languages are Python, Ruby, Perl, PHP, SQL या SQL etc. ठीक है, तो ये कुछ हाई लेवल मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं. Some of these modern languages provide a visual or graphic interfaces called a visual programming environment for creating the programs. ठीक है, तो कई मॉडर्न लैंग्वेजेस जो होती हैं वो विजुअल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट्स को भी सपोर्ट करती है. जस्ट लाइक if I talk about the visual, so what are the visual? Visual means जो भी ग्राफिक इंटरफेस का यूज करे या हमसे इंटरैक्टिव मोड में यूज करे, जैसे कि बटन्स क्या हैं, जैसे आप बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, तो फॉर्म सबमिट हो जाता है, या आप किसी चीज के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका कलर बैकग्राउंड में चेंज हो जाता है. तो ये सब क्या विजुअलिटीज हैं. विजुअलिटी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट हम कैसे यूज करते हैं, तो ये भी मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप सभी 6th क्लास में हैं, आपने अभी कोई वेबसाइट्स या वेब पेजेस क्रिएट नहीं किए हैं, जो हम करेंगे साथ में HTML के वेब पेजेस बनाएंगे, तब आप समझेंगे कि हाँ प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है. तो बहुत ही ज्यादा आप एक्साइटमेंट में रहिए, आपको कोडिंग सिखाई जाएगी. ठीक है, और मैं ही आपको कोडिंग सिखाऊंगा, सो डोंट वरी. ओके, these programming languages are designed to make the computer solve a given problem without the programming. तो अब कई मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज क्या करती है कि हमें बिना प्रोग्रामर के भी कुछ प्रोग्राम्स, कुछ सॉफ्टवेयर रन करने की अलाउंस देती है. जैसे कि अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, AI की. ठीक है, आपने देखा होगा रोबोटिक्स, है ना, रोबोटिक्स नाम सुनते सभी के मन में आ जाता है वो एक फिल्म, वो एक रोबोट, है ना. तो रोबोट्स का मीनिंग क्या होता है? रोबोट्स का मीनिंग वो होता है कि जब भी कोई एक ऐसी मशीन बना देना जो कि ह्यूमंस की तरह काम करे. ठीक है, तो वो सब हमें किसके थ्रू अचीव कर सकते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो रोबोटिक्स है, जो AI टेक्निक्स है, उसमें प्रोग्राम्स यूज होते हैं. तो आप सभी प्रोग्राम्स बनाना सीखना चाहते हो ना? वाह, सभी के यस आ रहे हैं, मुझे पता है यूट्यूब से सभी ने यस बोला है. वेरी गुड. चलिए देखते हैं. द यूजर डज नॉट नीड स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग. जैसे कि अब कई लैंग्वेजेस होती हैं, कई ऐसे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हमें प्रोग्रामिंग की नीड नहीं होती है. ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेजेस को हम क्या कह सकते हैं? 5th जनरेशन लैंग्वेजेस. अब ये लैंग्वेजेस करती क्या है? ये लैंग्वेजेस आपको AI इंटरफेस बनाने में हेल्प करती है. ठीक है, तो ये कौन कौन सी लैंग्वेज होगी? प्रोलोग. प्रोलोग मेनली AI में यूज आता है. मर्करी, OPS5, ये तो ये क्या है? 5th जनरेशन लैंग्वेज है. अब आपके MCQ क्वेश्चंस में आता है कि चलिए 5th जनरेशन की लैंग्वेज बताइए, तो आपका आंसर होगा प्रोलोग, मर्करी, OPS 5th एक्सेट्रा. ठीक है, so I hope that you have understood the modern high level language and you can differentiate between the high level language and between the modern high level language. So both are the high level language, but the execution time, the cost, the efforts, the specialties are much different between them. Okay, so now our next topic is language translator. ठीक है, what are the language translators? So far we have discussed the languages, low level languages, high level languages, modern high level languages, but how they will convey our messages, our instruction to the computer, ये कैसे करते हैं. ठीक है, अब आपने तो लिख दिया कि प्रिंट हेलो, या आपने लिख दिया C इक्वल्स टू A+B. तो ये जो C है, ये A है, ये B है, ये कंप्यूटर थोड़ी ना समझता है, नहीं समझता ना. तो इसको आपको ट्रांसलेट करना होगा. तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ट्रांसलेटर्स होते हैं जो हमारे दिए गए इनपुट्स को, हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को उनकी भाषा में, उनकी किनकी? कंप्यूटर की. और कंप्यूटर की क्या भाषा होती है? मशीन लैंग्वेज. ठीक है, 01101. as you can see in the picture here also that we are giving the instruction x equals to 1 2 10 print print. अभी print print तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, तो उसको वो कन्वर्ट किस में कर देगा? 101110 कोड में. ठीक है, so this is all about the language translator. So let's understand. To make a computer understand a program written in high level language, it is converted into machine level language as easy as you can. ठीक है, अब आपने जो मशीन लेवल लैंग्वेज में C++ में, जावा में, पाइथन में, HTML में या किसी भी लैंग्वेज में आपने जो इंस्ट्रक्शन लिखा है उसको कन्वर्ट करना होगा, उसको ट्रांसलेट करना होगा किस लेवल लैंग्वेज में? मशीन लेवल लैंग्वेज में. तो ये कौन करता है? ट्रांसलेटर. सो दिस इज डन बाय अ ट्रांसलेटर. अ ट्रांसलेटर डिबग्स द प्रोग्राम एंड हेल्प्स इन एग्जीक्यूशन. ठीक है, डिबग का मीनिंग क्या हुआ?
डीबग्स का मीनिंग होता है कि अगर हमने अपने इंस्ट्रक्शंस में कुछ गलतियां की हैं, हमने अपने प्रोग्राम में कुछ एरर्स की हैं, ठीक है, तो वो उसको फाइंड आउट करेगा, फिर वो हमसे वापस कहेगा कि सर आपने गलती की है, आप वापस इस प्रोग्राम को लिखो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बेटर एग्जीक्यूशन होता है। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ठीक है। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ द वर्किंग ऑफ ट्रांसलेटर बीइंग डन, ठीक है। ट्रांसलेटर आखिर काम कैसे करता है ये भी तुम जानेंगे ना। अब हम 6th क्लास में आ चुके हैं, तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि आखिर कोई काम होता कैसे, ठीक है। उसको रटना नहीं है, हमें समझना है। सो वंस यू क्रिएट योर प्रोग्राम, जैसे कि मान लीजिए अपन ने सोर्स प्रोग्राम बना लिया, कोड बना लिया, ठीक है, कोडिंग कर ली हमने। अब मैंने अभी बात आपको बताई कि ये कोडिंग कंप्यूटर डायरेक्टली, मार्क माय पॉइंट, डायरेक्टली नहीं समझ पाएगा, तो उसको आपको डायरेक्टली कैसे समझाएंगे। सो आप किसका यूज करेंगे, ट्रांसलेटर का। सो द ट्रांसलेटर चेक्स द सिंटैक्स ऑफ योर प्रोग्राम टू मेक श्योर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज यूज्ड करेक्टली, ठीक है। तो अब ट्रांसलेटर क्या करेगा, सिंटैक्स देखेगा। अब स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स क्या होता है, एक बेसिक परफॉर्मा होता है कि हाँ, मुझे कोई भी लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस है या कोई भी जो सेगमेंट्स है, स्टेटमेंट्स हैं, वो मेरे को इसी कोड ऑफ कंडक्ट में लिखने होंगे, ठीक है, इसी वे में लिखने होंगे। जैसे कि आपका लेटर लिखते हैं, आप एप्लीकेशंस लिखते हैं, तो इसका भी एक सिंटैक्स होता है। आप ऐसा तो है नहीं कि पहले बॉडी लिख देते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर, फिर उसके बाद नीचे लिखते हैं टू दी हेडमास्टर। तो हर किसी का एक परफॉर्मा पहले से सेट होता है ना। पहले आप क्या लिखते हैं, टू दी हेडमास्टर लयाल पब्लिक स्कूल, एंड देन यू राइट द सब्जेक्ट, देन यू राइट द एनोटेशंस, ठीक है, उसके बाद आप लिखते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आप जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं, लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, तो हम एक सिंटैक्स यूज करते हैं। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, ट्रांसलेटर पहले यही चेक करता है कि क्या जो प्रोग्रामर ने, क्या जो 6th क्लास के स्टूडेंट्स ने ये जो प्रोग्रामिंग की है, जो कोडिंग की है, इसका सिंटैक्स सही है कि नहीं है। अगर सिंटैक्स सही होता है, तब वो जाकर हमारे प्रोग्राम को रन करता है। फिर वो देखता है क्या इसमें कोई गलतियां तो नहीं है। अगर गलतियां हैं तो हमारे प्रोग्राम को रन नहीं करेगा, उसका आउटपुट शो नहीं करेगा। इट गिव्स ऑल द सिंटेक्स एरर डिस्क्रिप्टिव मैसेज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये हमें बताता नहीं है कि आपने क्या गलती किया है। ये जो अभी हम एरर करते हैं, सिंटेक्स की एरर हो गई या डिबगिंग की एरर हो गई, ये हमें सब कुछ डिस्क्रिप्टिव मैसेज के थ्रू बताएगा कि सर यू हैव डन दिस मिस्टेक ऑन दैट लाइन। ये लाइन बाय लाइन हमें मैसेज का बताता है, ठीक है। यू करेक्ट द एरर्स एंड रीरन द प्रोग्राम टू गेट अ नो एरर मैसेज। फिर हम क्या करते हैं, उन एरर्स को करेक्ट करते हैं, उसके प्रोग्राम्स को वापस से रन करते हैं, जब तक कि कोई नो एरर मैसेज ना आ जाए, जब तक कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर ना बचे। तो इस तरह से ट्रांसलेटर वर्क करता है, ठीक है। एक बार वापस बता देता हूँ। ट्रांसलेटर क्या करेगा, पहले हमारे प्रोग्राम को लेगा, फिर उसके सिंटेक्स को चेक करेगा, सिंटेक्स को चेक करेगा कि देखेगा कि सिंटेक्स में तो कोई एरर नहीं है, फिर हमारे लॉजिक के एरर्स को देखेगा, फिर जाके वो हमारे को रन करने की अलाउंस देगा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द वर्किंग ऑफ ट्रांसलेटर। Now, the translator translates your program into form the computer can understand, ठीक है। और ट्रांसलेटर किसमें ट्रांसलेट कर देगा, वापस मशीन कोड में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स के ट्रांसलेटर्स होते हैं। पहला है कंपाइलर एंड दूसरा है इंटरप्रेटर्स, ठीक है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स मोस्टली दोनों एक ही तरह का काम करते हैं। मार्क माय पॉइंट, एक ही तरह का काम, यानी क्या काम करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। बट जो उनका वर्किंग प्रोसेस है, जो उनकी मेथोडोलॉजीज है, वो थोड़ी सी डिफरेंस है, ठीक है। वो हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि सोर्स कोड, यहाँ पर सोर्स कोड का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमारा प्रोग्राम, हमारी कोडिंग। सोर्स कोड कंपाइलर के पास जाएगा, कंपाइलर उसको कन्वर्ट करके यहाँ पर मार्क माय पॉइंट ऑब्जेक्ट कोड में बदलेगा, फिर ये ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्रामिंग रन होगा, यानी आउटपुट शो करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर में देखो, सोर्स कोड लिया, इंटरप्रेटर की उसकी यानी कि उसने ट्रांसलेट किया और सीधा उसको रन कर देगा, सीधा उसका आउटपुट दिखा देगा। जबकि कंपाइलर क्या करेगा, पहले ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा, फिर जाके उसको कहीं पर रन करेगा या फिर आउटपुट शो करेगा। चलिए अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर को बारी बारी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कंपाइलर क्या है। A compiler searches errors in the entire program and lists them, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को, पूरे कोडिंग को एक बारी में एक साथ सर्च करता है एरर्स के लिए। यानी ये जो मान लो कोड लिखा हुआ है, इसको पूरे को पढ़ेगा पहले, फिर पूरी की गलतियां निकालेगा, तब जाके उसको रन करेगा। इफ द प्रोग्राम इज एरर फ्री, यदि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, देन इट कन्वर्ट्स द कोड ऑफ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। फिर वो उसको मशीन कोड में बदल देता है, और मशीन कोड में अगर एक बार बदल गया प्रोग्राम, तो हमारा प्रोग्राम रन कर देगा, आउटपुट दिखा देगा, और हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन जाएंगे, है ना। सभी 6th क्लास के स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनने को तैयार है, आई नो दैट।
तो ये देखो कैसे काम करता है कंपाइलर। यहाँ पर ये क्या है, प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसके बाद कंपाइलर ने उसको कन्वर्ट किया किसमें, एग्जीक्यूटेबल कोड में, यानी कि मशीन कोड में। और अगर कोई एरर है तो एरर की रिपोर्ट भी वो देता रहता है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कंपाइलर। नाउ वी विल लेट्स एक्सप्लोर द इंटरप्रेटर। सो एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट, देखिए कंपाइलर भी ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेट करता है। सो एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन। देखिए कंपाइलर क्या करता था, एंटायर प्रोग्राम को एक साथ सभी प्रोग्राम को रन कर मतलब एरर्स के लिए सर्च करता था। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन, पहली लाइन को चेक करेगा, फिर दूसरी लाइन को चेक करेगा, फिर तीसरी लाइन को चेक करेगा। ठीक है, अगर एरर फाउंड होती है, जैसे मान लीजिए पहले लाइन में ही एरर आ गई, ठीक है, तो वो स्टॉप कर देगा, वो दूसरी लाइन पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, पहले लाइन को चेक किया, अगर कोई एरर आ गई तो वो हाथों हाथ एरर बता देगा, नहीं है तब वो जाके इंटरप्रेटिंग करेगा, कन्वर्ट करेगा, फिर जाके आउटपुट दिखा देगा। अब यहाँ पर देखो टेम्पररी वर्ड यूज किया गया, टेम्पररी आउटपुट इसलिए दिखाता है, क्या पता नेक्स्ट लाइन में वापस एरर आ जाए तो। ठीक है, और यहाँ पर स्टॉप कर देगा अगर उसके एरर आ गई तो मुझे पता है आप सभी को कंपाइलर और इंटरप्रेटर समझ में आ रहा है ना। तो चलिए, अब जब हमें समझ में आ ही गया है कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, तो हम देख लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो दोनों में आखिर अंतर क्या है। So we will look to the differences between the compiler and interpreter. So here I have written the compiler, here I have written the interpreter. So it spends a lot of time analyzing and processing the program. हम समझ सकते हैं कि कंपाइलर जो है वो प्रोग्राम को यानी हमारे कोड को बहुत ज्यादा एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लेता है। लेकिन ये कम टाइम लेता है। देखो आपको मान लो आंसर्स को लिखना तो कितना इजी है, यहाँ पर लॉट ऑफ टाइम है या लिटिल टाइम है, बाकी तो सेम का सेम है, एनालाइजिंग, प्रोसेसिंग द प्रोग्राम, सब कुछ सेम है। ठीक है, अब देखते हैं कंपाइलर। कंपाइलर जो प्रोग्राम को एक साथ यानी होल एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है। बहुत इजी है, दोनों में डिफरेंस याद हो रहा है ना साथ के साथ। It generates error messages only after scanning the whole program. ये एरर मैसेज हमें तभी बताएगा जब ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को क्या करेगा, डिबग कर लेगा। लेकिन ये क्या करेगा इंटरप्रेटर, ये एक लाइन चेक करेगा, अगर कोई एरर है तो एरर मैसेज हमको बता देगा कि भैया आपने इस लाइन में गलती की है। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज फास्ट, कंपाइलर का फास्ट होगा, इंटरप्रेटर का थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि वो एक लाइन पहले चेक करेगा, फिर दूसरी लाइन चेक करेगा, फिर तीसरी लाइन चेक करेगा ना, तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। कंपाइलर क्या करता है, ज्यादा मेमोरी चाहिए उसको। क्यों ज्यादा मेमोरी चाहिए, क्योंकि वो तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन करेगा। इंटरप्रेटर को एक लाइन किया, मेमोरी में स्टोर कर दिया, दूसरी लाइन किया, मेमोरी में स्टोर कर दिया, तो उसको थोड़ा सा लेस मेमोरी चाहिए होता है। तो आई होप कि आप सभी को डिफरेंसेस भी समझ में आ गए हैं। सो इस तरह से हमने अपना चैप्टर 2 विच इज द कंप्यूटर लैंग्वेजेस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा आपकी बुक एक्सरसाइजेस का, और मैं चाहूंगा कि आप अपने बुक एक्सरसाइजेस के जो बुक पार्ट है वो आप अपने आप से ट्राई करें थोड़ा सा करने का, मुझे पता है आपको आ रहा है समझ। ठीक है, तो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस सेशन वेरी मच। So until then, take care, bye bye, and this is all about from today's session. Thank you.